Gordon McLeany says that peace is the soil where hope takes root. Hence, this emphasis on mental health, which is primary for inner peace. Inner peace as a word comes so seamlessly from the movie Kung Fu Panda. I'm sure everybody has enjoyed it and you still want to see the movie again and again when that beautiful panda says inner peace. And finding this inner peace is a journey. To make this journey meaningful and useful both, our keynote speaker Gaurang Prabhudas will guide us through his epitome experiences. Let us become one with Prabhuji in our journey to spirituality. I request Gaurang Prabhudas ji to kindly grace the dais with us, sir. And can we have the AV of sir being played for us? Shri Gauranga Das, an alumnus of IIT Mumbai turned monk, stands at the intersection of transformative leadership and mindfulness. As a distinguished author of best-selling books, The Art of Resilience and The Art of Focus, he combines spiritual wisdom with practical insights. He has also been a speaker at esteemed conferences like TEDx, Intel, Salesforce, and Google, bringing his expertise to a global audience. A governing body commission member in ISKCON, he actively contributes to global leadership and governance. His role as a director of Govardhan Eco Village, a recipient of the UNWTO Award for Innovative Ecotourism, showcases his dedication to sustainability and environmental consciousness. Shri Gauranga Das extends his impact beyond his spiritual realms by working towards a hunger-free Palghar district in collaboration with government, corporates and NGOs. His Artha conferences, designed to connect spirited entrepreneurs and professionals, emphasizes the relevance of ancient wisdom in contemporary business. These events have played a pivotal role in encouraging entrepreneurs to incorporate social responsibility into their business models. Ladies and gentlemen, put your hands together for a transformative leader bridging the gap between timeless wisdom and contemporary challenges, Gauranga Das Prabhuji. मंच पे उपस्थित सभी विशेष रोटेरियन, यहाँ पर श्रोतागण जो आए हैं, सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि आज नासिक में आप सभी के बीच आशाएं कार्यक्रम में कुछ मानसिक स्वास्थ्य, शांति और आशा के विषय में कुछ दो शब्द व्यक्त कर सकूं। थोड़ा वॉल्यूम देना। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्रतिष्ठा होगी और कई हजारों वर्षों से प्रतीक्षा हमारी पूर्ण होगी। जय श्री राम। तो आशाएं जो कार्यक्रम है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रामायण और श्री राम जी का चरित्र सदियों से हम सभी के हृदय में आशा की किरण प्रज्वलित किया है। तो आज मैं कुछ मिनटों में आपको राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये 4 नाम, इन 4 नामों से हमारे हृदय के अंदर आशा की किरण कैसे जागृत हो सकती है और निराश व्यक्ति पुनर्जीवित कैसे हो सकता है, इसके विषय में सुनाने का प्रयास करूंगा। 1992-93 की बात है, मैं IIT बॉम्बे में था और वहाँ पर मेरे एक क्लासमेट थे जो बहुत अच्छा स्टूडेंट थे, लेकिन अचानक पता नहीं क्या सदमा लगा, आत्महत्या करने का प्रयास किया। आत्महत्या का अर्थ होता है कि व्यक्ति पूर्णतः निराश हो जाता है, उसको लगता है आई एम होपलेस। तो मैं उनके पास जाकर पूछा कि भाई आत्महत्या करने का प्रयास क्यों किया। मुझे देख के कहता है, हर एग्जाम में मैं गोल्ड मेडल लाता था, इस एग्जाम में मुझे सिल्वर मेडल मिला, ये मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए सुइसाइड अटेम्प्ट किया। मैं देख के चौंक गया
और मैं कहने लगा, भैया लोग आईआईटी में घुसने के लिए अपने आप को मार रहे हैं, लेकिन आप आईआईटी के अंदर रहकर मर रहे हो। यह है मन का खेल। उसी कैंपस में, उसी बैच में मेरे 3-4 दूसरे मित्र थे जो 4-4 सब्जेक्ट में फेल हो गए थे, लेकिन फिर भी बड़े आराम से कैंपस में हंसते खेलते घूम रहे थे, दूसरों को आशीर्वाद देते हुए, चिंता मत करो, हमको देखो, 4-4 सब्जेक्ट में लुढ़क गए हैं, फिर भी प्रसन्न हैं। तो मैंने उनको देख के पूछा कि भाई आपके इस शांति और आशा के पीछे रहस्य क्या है? आप तो बड़े बेशर्म लग रहे हो कि 4-4 सब्जेक्ट में फेल हो के आराम से घूम रहे हो। वो बेचारा गोल्ड मेडल नहीं मिला तो अपने आप को मार रहा है। तो आपका सीक्रेट क्या है मेंटल हेल्थ का और इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस का 4-4 सब्जेक्ट में फेल होने के बाद? वो कहते हैं हम लोग का फिलॉसफी सिंपल है, कॉलेज में घुसना अपना काम है, निकालना कॉलेज का काम है। तो इसीलिए रामायण की भूमिका में अगर आप देखो तो सबसे पहले पात्र हैं श्री राम, और राम शब्द आता है रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदे नासौ परम ब्रह्मा विदीयते। राम अर्थात श्रेष्ठ आदर्श चरित्र के स्रोत। राम रिप्रेजेंट्स इंटीग्रिटी। What's the difference between integrity and honesty? Honesty is to speak what I have done and integrity is to do as I have spoken. और इसलिए रामचंद्र जी निरंतर अनुशासनबद्ध थे, वचनबद्ध थे। उनका निष्कलंक पारदर्शी चरित्र था। आज आधुनिक शिक्षा प्रणाली में आर्थिक विकास के ऊपर बहुत बल दिया जा रहा है। आज आधुनिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत सबको लगता है कि कोई नौकरी व्यवसाय कर ले, आर्थिक विकास कर ले तो पर्याप्त है। चरित्र के ऊपर बल नहीं दिया जा रहा। The ends seem to justify the means. And dear friends, what's the difference between success and happiness? Success is to get what you like, but happiness is to like what you get. And that is what Lord Ram is teaching by his example. रामचंद्र जी को दशरथ महाराज ने विचार किया कि हम उनको बनाएंगे राजा। पूरे अयोध्या नगरी को बुलाया, विशाल सभा में सबको बिठाकर दशरथ महाराज ने घोषणा की कि मैं अपने राजगद्दी से 60,000 वर्षों तक राज्य करने के पश्चात श्री राम को मैं राज्याभिषेक नियुक्त करने वाला हूं, और राज्याभिषेक करने के बाद उनको ही हम राजा बनाएंगे। जैसे ही घोषणा समाप्त हुई, एक विशाल धमाका पूरे राजसभा में खड़ा हुआ। उस धमाके को सुनकर दशरथ महाराज ने मंत्री को बुलाया और कहा कि इतना भयंकर धमाका मेरे अनाउंसमेंट के बाद क्यों हुआ? मंत्री ने कहा कि दशरथ महाराज, पिछले 60,000 वर्षों से आप अयोध्या के राजनगरी के ऊपर प्रशासन कर रहे हो। 60,000 वर्षों से आप कितने ही डिसीजंस ले रहे हो, लेकिन आपने अभी जो डिसीजन लिया कि आप यहां से रिटायर होकर राम को राजा बनाओगे, 60,000 ईयर्स में सबसे बेस्ट डिसीजन यही रहा। दशरथ महाराज को अचानक धक्का लगा। उनके मन में कुछ शंका उत्पन्न हुई, असुरक्षा की भावना आ गई कि मैं इतना नालायक हूं क्या कि मेरे जाने का लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तब फिर मंत्री ने कहा, नहीं, ये आपकी समस्या नहीं है। जो लोग रामचंद्र जी को राजा के रूप में देखकर प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं, ये आपके विरोध में कोई स्टेटमेंट नहीं, वक्तव्य नहीं। रामचंद्र जी सर्वगुण संपन्न हैं, और उन सभी गुणों में सर्वश्रेष्ठ गुण है इंटीग्रिटी या आदर्श पारदर्शी चरित्र। और आज पूरे विश्व में ऐसे चरित्र की आवश्यकता बहुत है, क्योंकि चरित्रहीनता के कारण हम देख सकते हैं कि अमेरिका में सबसे बड़ा जो इंडस्ट्री चल रहा है वो है प्रिजन्स। करोड़ों करोड़ों की संख्या में सरकार को अपना पैसा व्यय करना पड़ता है सर्वेलेंस में, हर प्रकार के क्राइम डिटेक्शन में।
येरवाड़ा जेल का एक प्रोग्राम मैं कर रहा था कई वर्ष पूर्व। मेरे सामने करीब 500 कैदी बैठे हुए थे। जेल का प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद आता है। पता है क्यों? क्योंकि उसमें ऑडियंस गारंटीड होता है। जेल के प्रोग्राम के बाद दूसरा ऑडियंस गारंटीड वाला प्रोग्राम रोटरी का ही लग रहा है मुझे, जो 1870 लोगों को खड़ा कर दिया आप लोगों ने। तो मेरे लेक्चर के बाद मैंने कहा कोई प्रश्न है क्या? तो एक कैदी ने हाथ उठाया, बोला एक प्रश्न है। मैंने कहा पूछो। वो कैदी कहता मैं स्टेज पे आके पूछूंगा। तो मैं घबरा गया। बगल में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रिजन्स थे मेरे पास। मैंने उनको पूछा ये कौन है, स्टेज पे क्यों आना चाहता है? तो कमिश्नर साहब मेरे कान में बोले 12 मर्डर किया है उसने। मैंने कहा मैं 13वां होने वाला हूं क्या? उन्होंने कहा चिंता मत करो, आने दो। स्टेज पे आए, उन्होंने बड़ा सिद्धांत वाला प्रश्न पूछा। बैठे कैदी बड़े प्रसन्न हुए, जोर जोर से तालियां बजी। उनको लगा हमारे बीच में भी कोई पंडित है। फिर उसका सब उत्तर देने के बाद मैंने प्राइवेटली उस कैदी को पूछा कि इतने कम उम्र में आपने इतने मर्डर्स कर दिए, इतना क्राइम किया, आपने क्षण भर के लिए सोचा नहीं कि आपका भविष्य क्या होगा? तो वो कहता है जब मेरे हृदय के अंदर क्रोध की ज्वालामुखी उत्पन्न होती है, मैं देखता नहीं कि आगे क्या होगा। एक अचानक ऐसा भयंकर धुंधला छा जाता है। आई बिकम ब्लाइंडेड टू ऑल काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड आई जस्ट एक्ट इम्पल्सिवली, द पावर ऑफ एंगर। तो इसलिए इंटीग्रिटी, चरित्र का अर्थ यह है कि ऐसा नहीं कि इमोशंस या भावनाएं मन के अंदर नहीं आएंगी। इसका अर्थ यह नहीं कि अंदर से काम, क्रोध, लोभ, द्वेष इत्यादि नहीं सताएंगी। काम, क्रोध वगैरह दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक मारेंगी, लेकिन दरवाजा खोलना या न खोलना अपने हाथ में है। जो दरवाजा बंद रखे वो इंटीग्रिटी वाला है। आपको तो पता है मैं आईआईटी बॉम्बे से पास आउट किया और लगभग 2006-07 में जब यूएस गया था तो MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मेरा लेक्चर रखा। मैं बड़ा खुश था कि भाई आईआईटी का बड़ा भाई MIT। प्रोग्राम के लिए मैं तैयारी करके आया था और वहाँ पर मेरा पावर पॉइंट भी चलने वाला था। तो मैं स्टेज के मंच पर खड़ा हो गया और वहाँ पर पावर पॉइंट के ऊपर वो लोग प्रयास कर रहे थे LCD प्रोजेक्टर चलाने। 10-15 मिनट प्रयास के बाद भी वो LCD प्रोजेक्टर चला नहीं और मेरे लेक्चर का समय हो गया। ऑर्गेनाइजर मेरे पास आकर कान में कहते हैं सर आज LCD प्रोजेक्टर नहीं चल रहा है, आप भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर अपना लेक्चर दो। तो मैंने कहा मेरा ही फिलॉसफी मुझे सुना रहा है। और मैं कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि मेरे लेक्चर का टॉपिक था ओवरकमिंग एंगर और पहला स्लाइड था थिंग्स विल नॉट ऑलवेज वर्क द वे यू एक्सपेक्ट। तो यहां जितने बैठे लोग हैं, आप सभी के जीवन में कभी न कभी कोई न कोई या कई बार घटनाएं घटी होंगी जो आपके अपेक्षा के विपरीत रही होंगी। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद दैट? रेज योर हैंड। यू एक्सपेक्ट समथिंग बट समथिंग एल्स हैपेंस। देखिए, तो इसलिए भगवत गीता में और रामायण में तनाव या स्ट्रेस की परिभाषा दी जाती है। इट्स द गैप बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। हम कुछ अपेक्षा करते हैं, वास्तविकता कुछ और होती है। अपेक्षा और वास्तविकता के बीच जो फासला है उसी को कहते हैं तनाव, उसी को कहते हैं चिंता, उसी को कहते हैं डिप्रेशन, उसी को कहते हैं एंजाइटी सिंड्रोम, उसी को कहते हैं इनसिक्योरिटी। ये सभी मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जितने शब्द हैं, उपाधियां हैं, ये सब की जननी यही है। और इसलिए जब रामचंद्र जी को अचानक
बिना उनकी अपेक्षा के वनवास घोषित कर दिया गया। सोचिए, अगले दिन जिनकी राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है, उस पूर्व संध्या रात्रि को उनको वनवास घोषित कर दिया। लेकिन रामचंद्र जी की प्रतिक्रिया क्या थी? रामचंद्र जी तत्पर होकर तैयार हो गए और पिताजी को नतमस्तक होकर कहते हैं हम जाने के लिए तैयार हैं। दशरथ महाराज कहते हैं नहीं, भले बाध्य होकर मैंने आपको आदेश किया है वनवास करने का, लेकिन मैं आपको अनुमति देता हूं कि मेरे आदेश का आप उल्लंघन करो और आप अयोध्या में ही बने रहो। यू कैन डिसओबे माई ऑर्डर, आई गिव यू द अथॉरिटी। लेकिन रामचंद्र जी कहते हैं नहीं, मैंने आपको शब्द दिया है, मैं अनुशासनबद्ध हूं, मैं आज्ञाकारी हूं और आपके शब्द मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। और रामचंद्र जी बिना पलक झपके अयोध्या नगरी से निकले और सीधे वनवास में प्रवेश कर गए। हम लोग नासिक में हैं, यहाँ पर भी श्री राम के कई लीलाओं की स्थली है। सीता देवी चित्रकूट के आगे रामचंद्र जी को वनवास में एक बार बोल देती है कि श्री राम, बहुत दिनों से आपको अपने हाथ में धनुष और बाण लेकर चलता हुआ देख रही हूं। कई वर्ष बीत गए, आप धनुष और बाण लेके चल ही रहे हो मेरे साथ विवाह के बाद, लेकिन एक बार भी बाण चलाते हुए देखा नहीं। वास्तव में आप ये बाण वाण चला पाओगे क्या, कि ये केवल डेकोरेशन है? मार दिया कमेंट। आपको तो पता ही है, कमेंट चलता रहता है। लेकिन रामचंद्र जी ने भी सोचा कि हर कमेंट की प्रतिक्रिया तुरंत नहीं देनी चाहिए, नहीं तो घरेलू शांति बिगड़ जाती है। तो रामचंद्र जी ने सोचा, सीता देवी ने कमेंट मारा, सही समय पर उत्तर दूंगा। तो रामचंद्र जी और सीता देवी आगे आए यहीं पर तपोवन में, और वहीं पर जब थे तो शूर्पणखा का आक्रमण हुआ और शूर्पणखा के नासिका को काटकर जब लक्ष्मण ने दूर फेंका, जिस स्थान में वो गिरा वो नासिका बन गया नासिक स्थान। तब शूर्पणखा अपने दो भाई खर और दूषण को जाकर कहती है कि आप आओ रक्षा करो। तो खर और दूषण शूर्पणखा के दो भाई 14,000 राक्षसों को लेकर आक्रमण करते हैं रामचंद्र पर। लक्ष्मण दूर से देखते हैं इन असुरों को आते हुए, रामचंद्र को कहते हैं प्रभो ये 14,000 असुर आ रहे हैं, आप कृपा करके गुफा के अंदर सीता देवी के साथ बैठिए, मैं इनका युद्ध करके संहार करूंगा। रामचंद्र जी लक्ष्मण को देख के मुस्कुराते हैं, कहते हैं नहीं लक्ष्मण, युद्ध मैं करूंगा, इन 14,000 असुरों का वध मैं करूंगा, आप सीता देवी को लेकर गुफा के अंदर जाओ। लक्ष्मण कहते हैं प्रभो ये असुर आपके स्टैंडर्ड के नहीं हैं, मैं ही पर्याप्त हूं, आप अंदर जाइए, बहस मत कीजिए। रामचंद्र का लक्ष्मण मैं आदेश करता हूं, आप अंदर जाओ, युद्ध मैं करूंगा। लक्ष्मण कहते प्रभु आप इतना हट क्यों कर रहे हो, आप मुझे युद्ध करने दीजिए, सेवा का मौका दीजिए, आप जाइए सीता देवी के साथ अंदर। रामचंद्र जी उच्च स्वर में लक्ष्मण को डांट के कहते हैं लक्ष्मण ये मेरा घरेलू मामला है, डिटेल्स में नहीं बता सकता, चुपचाप अंदर जाओ। लक्ष्मण अंदर चले गए। रामचंद्र जी 1 घंटे के अंदर 14,000 असुरों का वध किया, और कहा जाता है रामायण में कि एक पसीने का बूंद भी उनको आया नहीं। और जैसे ही सबका वध किया, सीता देवी बाहर वरमाला लेके आई और जोर जोर से रामचंद्र जी की जयघोष करने लगी और कहने लगी कि प्रभु आपने जो पराक्रम का प्रदर्शन किया, मैं तो शुक्र करती हूँ कि आज मेरे पिताजी ने आपको इतना पराक्रमी रूप में नहीं देखा, अगर वो देखते तो शायद मेरी 2 बहनों का विवाह भी आपके साथ कर देते। तो इस प्रकार रामचंद्र जी चरित्रवान, हैविंग फुल इंटीग्रिटी, हैविंग डिसिप्लिन, डेडिकेशन, एबिलिटी टू रेजिस्ट टेम्पटेशंस। क्योंकि जब कोई हमको प्रवोक करता है तो लगता है कि तुरंत कुछ बोलो, और उसके कारण शांति भंग हो जाती है। हमारे मेजर जनरल साहब आए हैं,
विद्याधर जी। तो लगभग 1 वर्ष पहले सागर ने अरेंज किया था मेरा एक प्रोग्राम आपके जम्मू कश्मीर में नागरोटा में मेरा एक लेक्चर रखा था, और मैं उस लेक्चर में ऐसी स्ट्रेस वगैरह के ऊपर एक शिविर था 2 दिन का, कई स्पीकर्स थे, मैं भी था। तो उसके लगभग अंत में, मेरे वक्तव्य के अंत में मैंने कहा कि भाई पिछले 30 साल से मैं लेक्चर्स दे रहा हूँ कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉरपोरेट्स में, जेल्स में, लेकिन पता नहीं आर्मी में अभी तक कभी मेरे को इनवाइट मिला ही नहीं, तो पहली बार ये मिला है। और तब जाकर शाम के समय कुछ ऑफिसर मुझे मिले और कहने लगे कि वास्तव में आप सही कह रहे हो, क्योंकि अभी तक हम लोगों का सब कुछ सेल्फ सफिशिएंट चल रहा था, लेकिन जब से ये स्मार्टफोन और ये सब आया है, एक ज़माने में जब फ्रंट पे कोई सिपाही रहता था और घर पे उसकी पत्नी और उनकी सास के साथ कुछ हो जाता था तो फिर वो चिट्ठी लिखते थे, दोनों की चिट्ठी 15 दिन बाद पहुंचती थी, तब 15 दिन बाद इनका रिप्लाई आता था, जब तक रिप्लाई आए मामला सॉर्ट भी हो जाता था, तो सब कुछ शांति से चलता था। आजकल ये बेचारा खुद तनाव में फ्रंट पे है और तुरंत यहाँ से फ़ोन आता है, वहाँ से फ़ोन आता है, और उसको समझ में नहीं आता कौन सा युद्ध ज़्यादा खतरनाक है, बाहर वाला या घर वाला। और मैं शौक हो गया जानकर कि कई इस तरह के मानसिक तनाव के कारण समस्याएं बढ़ रही हैं। सो यस डियर फ्रेंड्स, मेंटल हेल्थ इज अ बिग इश्यू. वी विल ऑल बी सब्जेक्ट टू प्रोवोकेशन, बट वी मस्ट learn to respond to provocation and not react to provocation. And that's what we learn from the charitra of Ram, who represents integrity. Next, Lakshman. Sarva priyakarastasya ramasya sharirata lakshmano lakshmi sampanna bahir prana iva para. लक्ष्मण शब्द का अर्थ क्या है? वाल्मीकि रामायण वर्णन करता है, लक्ष्मण का अर्थ है लक्ष्मी संपन्न, जो लक्ष्मी से संपन्न है वो लक्ष्मण। अब प्रश्न उठता है, ऐसी कौन सी लक्ष्मी लक्ष्मण के अंदर थी? क्योंकि वो भी 14 वर्ष रामचंद्र जी के साथ थे, संपूर्ण अयोध्या के राजसी वैभव से वंचित। तो फिर ऐसे दरिद्रतापूर्ण अवस्था में वो कौन से लक्ष्मी संपन्न हुए? तो वर्णन आ रहा है, लक्ष्मण के पास जो सर्वशक्तिशाली लक्ष्मी थी वो है श्री राम के चरणों के प्रति सेवा रूपी लक्ष्मी। जो सेवा करने का अवसर हमें मिलता है, निस्वार्थ सेवा के साथ हम दूसरों को सहायता कर पाते हैं, इस सेवा के अवसर को ही अपने जीवन का सबसे बड़ा धन बताया गया है, सबसे बड़ा ऐश्वर्य बताया गया है। द अपॉर्चुनिटी टू सर्व इज one of the greatest wealth we can have. तो इसलिए लक्ष्मण शब्द का अर्थ है वो जो लक्ष्मी संपन्न है, वो है लक्ष्मण। तो कई बार हम देखते हैं कि अपने जीवन में चाहे कितना कुछ भी प्राप्त हो जाए, हम व्यक्ति संतुष्ट ही नहीं रहता, उसे लगता है मुझे और पाना है, और कमाना है। आज विश्व में 800 करोड़ लोग हैं, केवल 200 करोड़ हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं, जो टैक्स पेइंग हैं, जो व्यवसाय कर रहे हैं, और ये 200 करोड़ लोग ही आपस में फेसबुक और सोशल मीडिया में एक दूसरे को चित्र और वीडियो भेजकर एक दूसरे को परेशान भी कर रहे हैं। ये स्पर्धा और कंपटीशन ये 200 करोड़ के बीच में ही है, बाकी 600 करोड़ तो आर्थिक रूप से पंगु है, बिलो पॉवर्टी लाइन है और पूरी तरह आश्रित है। भारत जैसे राष्ट्र में 27 करोड़ लोग स्कूल में जाते हैं, लेकिन 88% ड्रॉप आउट रेट है 1st to 12th के बीच में। केवल 12% स्टूडेंट भारत का 12th के आगे कॉलेज के अंदर एंट्री कर पाता है। आपके बच्चे अगर कॉलेज पढ़ रहे हो, यू शुड बी फॉर्चुनेट दैट दे आर अमंग्स द 12% ऑफ द माइनॉरिटी इन इंडिया। तो ये सेवा करने का अवसर, इसे कहते हैं लक्ष्मी, लक्ष्मी संपन्न। तो अगर हम अपने वर्तमान से असंतुष्ट होकर ये सोचे कि हम और कैसे प्राप्त करें, और कैसे प्राप्त करें, तो हम दूसरों की पीड़ा को नहीं देख पाते,
सेवा के प्रति ध्यान नहीं दे पाते। और एक इस युग में 3 सबसे बड़े कैंसर ऑफ द माइंड हैं, कंपेयरिंग, कंप्लेनिंग एंड क्रिटिसाइजिंग। कंपेयर करते हैं दूसरों के साथ। अरे भाई, भगवान ने हमको कोई क्षमता दी है, सामर्थ्य दिया है, उसको कीजिए। अगर हम दूसरों की तरह बनना चाहेंगे तो कभी बन ही नहीं सकते। जैसे किसी एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था, हाउ टू बिकम एक्सपर्ट पब्लिक स्पीकर। बहुत सारे लोग एकत्रित हो गए थे और स्पीकर जो ट्रेनर थे उन्होंने कहा, इफ यू वांट टू बी एन एक्सपर्ट पब्लिक स्पीकर, द बिगिनिंग ऑफ द स्पीच शुड बी समथिंग ड्रामेटिक। लेक्चर का स्टार्ट ऐसा होना चाहिए कि लोग हिल जाए। और फिर उन्होंने कहा, एक एग्जाम्पल देता हूं, और उन्होंने कहा, द बेस्ट ईयर्स ऑफ माई लाइफ वेर स्पेंट इन द आर्म्स ऑफ अ वुमन हु वॉज नॉट माई वाइफ। अब ये सुनकर सब घबरा गए, बोले क्या बोल रहा है, ये कोई स्कैम है क्या। फिर स्पीकर बोलता है, एंड दैट लेडी वॉज माई मदर। तो सब लोग बोले वाह, क्या लेक्चर स्टार्ट करने का तरीका है। तो उसमें से एक सज्जन अपने गांव में गए और घोषणा की, गांव में मैं पब्लिक स्पीकर बन गया हूं, सेमिनार अटेंड करके आया हूं, सब लोग आ जाओ मेरे लेक्चर सुनने। पूरा गांव खड़ा हो गया। मंच पे खड़ा होकर उसने सोचा वही लाइन दोहराता हूं जो सीख के आया हूं। तो बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ ऊपर खड़ा हुआ, लेकिन क्राउड को देखकर उसके पैर कांपने लगे, घबरा गया, नर्वस हो गया और कहने लगा, द बेस्ट ईयर्स ऑफ माई लाइफ वर स्पेंट इन द आर्म्स ऑफ अ वुमन हु वाज नॉट माई वाइफ। और इतना नर्वस हो गया, उसको आगे कुछ याद ही नहीं आ रहा था। बहुत याद करने का प्रयास किया, फिर बोलता है, एंड आई कांट रिमेंबर हु शी वॉज। अब सोचिए, अगर भगवान ने आपको कोई सामर्थ्य दिया है, उसको भली भांति कीजिए। लोग हर रोज व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम में देख देख कर यही सोचते रहते हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं और दूसरों की हम नकल कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। जो हम कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाते, क्योंकि बाहर ही देखते रहते हैं कि कौन क्या कर रहा है। इसलिए लक्ष्मण केवल इस बात से संतुष्ट थे कि मुझे राम के चरणों की सेवा का अवसर मिल रहा है। He was satisfied in the opportunity to serve राम। और इसलिए सेवा के लिए 4 बातें आवश्यक हैं। प्रगाढ़ प्रेमेर ए स्वभाव आचार, निज दुख बिघ्ना दीरनो कोरे विचार। हर परिस्थिति में, हर संबंध में 4 समस्याएं होती हैं। एवरी रिलेशनशिप हैज 4 प्रॉब्लम्स। इन एवरी रिलेशनशिप यू विल एक्सपीरियंस 4 प्रॉब्लम्स: स्कैर्सिटी, impediment, discomfort, unhappiness. And in spite of scarcity, impediment, discomfort and unhappiness, if the relationship continues, that is called love. तो लक्ष्मण ने रामचंद्र जी के सेवा में अपना सब कुछ त्याग दिया और उन्होंने उच्च कोटि का सेवा भाव या सर्विस एटीट्यूड व्यक्त किया। एंड ही वॉज नॉट इन टू कंपेरिजन। वो ये नहीं सोच रहे थे, अरे भरत तो वहाँ बैठे हैं, शत्रुघ्न तो मस्त वहीं बैठे हैं, हमको यहाँ आना पड़ा। नहीं, पूरी तरह तन मन धन के साथ लगे थे। मेरे एक मित्र एक कॉन्फ्रेंस में गए, कॉन्फ्रेंस में किसी का बिजनेस कार्ड लिया, कार्ड में उस व्यक्ति का नाम लिखा था, नाम के नीचे उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखा था PhD BF। तो बोले यार BF क्या है? वो बोले PhD बट फेल। बोले यार ये तो बड़ा अजीब है, क्यों? बोले क्या करें, मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मैं PhD बनूं। क्यों? क्योंकि मेरे 2 कजिन और PhD थे, तो मैं 2 साल किया, फिर ड्रॉप आउट किया तो BF आगे लिख दिया। अब फिर कॉन्फ्रेंस में जाता हूं तो लोगों को एक कार्ड दिखाता हूं, तो अधिकांश लोग PhD के आगे BF को देख के सोचते हैं दिस BF मस्ट बी अ डिग्री बियॉन्ड PhD। आप पहले व्यक्ति हो जो पर्दाफाश कर रहे हो। बंबई में होटल है, होटल प्रेसिडेंट, 5 स्टार होटल है, जो अफोर्ड कर सकता है वही अंदर जाएगा। लेकिन होटल प्रेसिडेंट के बाहर ठेले वाले ने समोसे का स्टॉल लगाया ठेले पे और उसका नाम दे दिया होटल वाइस प्रेसिडेंट।
और उसका मार्केटिंग पिच था, इफ यू कांट अफोर्ड द प्रेसिडेंट कम टू वाइस प्रेसिडेंट। तो देखिए टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, इंटरनेट ने बहुत कुछ वरदान दिया, बट वी मस्ट हैव द मेंटल स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस टू कंट्रोल टेक्नोलॉजी, टू बी एबल टू यूटिलाइज इट फॉर आवर पर्पसेस, एंड वी शुड नॉट अलाउ टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया टू कंट्रोल अस लाइक अ पपेट। और इसीलिए लक्ष्मण सेवा भाव के प्रतीक हैं। सो राम रिप्रेजेंट्स इंटीग्रिटी, लक्ष्मण रिप्रेजेंट्स सर्विस एटीट्यूड, भरत रिप्रेजेंट्स टॉलरेंस, टॉलरेट अर्थात सहिष्णुता। भारवाही इति भरत, भरत अर्थात वो जो भार वहन करे, वन हु हैज द एबिलिटी टू कैरी हेवी लोड। भरत शब्द आता है भार से, भार मीन्स लोड। तो प्रश्न उठता है, व्हाट वाज द लोड भरत वाज कैरिंग? भरत कौन सा भार संभाल रहे थे? अपने सर पर कौन सा भार वहन कर रहे थे? कैकेयी ने षड्यंत्र रच के रामचंद्र जी को वनवास करा दिया। भरत को राज्याभिषेक के लिए पूरी सेटिंग करा दी। संपूर्ण अयोध्या को लगा भरत भी इस षड्यंत्र में बहुत इन्वॉल्व हैं, लेकिन भरत का वास्तव में दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं था। जब भरत अयोध्या नगरी में प्रवेश करते हैं, दशरथ महाराज का देहांत हो चुका होता है, रामचंद्र वनवास में जा चुके होते हैं। अयोध्या का हर नागरिक भरत को देखकर क्रोध से आग बबूला होकर आरोपित करता है, शैतान है तू, केवल राजा सम्राट बनने के लिए षड्यंत्र रचा, पिता का हत्यारा है तू। और ऐसे कर्कश शब्द भरत महाराज के हृदय को विदीर्ण किए। अंतिम संस्कार करने गए दशरथ महाराज का, वशिष्ठ रोकते हैं, नहीं अंतिम संस्कार नहीं कर सकते भरत। भरत कहते मैं राम के बाद मैं ही तो यहां हूं, अंतिम संस्कार तो मेरा अधिकार है। वशिष्ठ ने कहा, दशरथ महाराज अपने अंतिम सांस लेते लेते घोषणा कर गए, भरत एक बहुत बड़ा कपटी है, पापी है, असुर है, राक्षस है, और उसी ने रामचंद्र जी को वनवास कराया है। वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। किसी भी परिस्थिति में भरत का साया भी मेरे मृत शव के निकट न आए। ऐसा कह के दशरथ महाराज दिवंगत हो गए। द पर्सन भरत लव्ड द मोस्ट, दशरथ डिपार्टेड हैविंग टोटल मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट भरत, एंड भरत हैड नो वे टू क्लैरिफाई द सिचुएशन। कई बार जिनके साथ निकट का संबंध होता है और कई मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं और संबंध कुछ कड़वे हो जाते हैं, आशा होती है कि भाई एक चांस मिलेगा, आई विल गेट अ चांस टू क्लैरिफाई, विल गेट अ चांस टू मेक अप, बट दूसरा व्यक्ति चला ही जाए तो पूरा जीवन भरत इस भार को लेके चल रहे थे कि मेरे पिता ने मुझे एक षड्यंत्र का अंग मान के गए। और उसके बाद रामचंद्र जी ने भरत को कहा, आपको ही राज्य का कार्यभार देखना है ऑन माई बिहाफ। भरत महाराज बिल्कुल नहीं चाहते थे, बट ही वॉज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट ही डिड नॉट लाइक। और सबसे बड़ी बात, सुबह 1:30 बजे उठकर सरयू नदी में स्नान करने जाते थे। क्यों? क्योंकि 2 बजे के बाद अयोध्या के नागरिक सरयू में जब स्नान करने आते, अगर किसी की दृष्टि भरत पर पड़ती, पत्थर उठा उठा के भरत को मारते थे कि यही वो कपटी है, यही वो पापी है जिसने दशरथ महाराज की हत्या की, जिसने रामचंद्र को भेज दिया। सोचिए, टू मैनेज एंड लीड अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हेट अस इज वेरी डिफिकल्ट। तो भरत महाराज अयोध्या का राज्य संभाल रहे थे, जानते हुए कि अयोध्या के राज के नागरिक उनसे नफरत करते थे, द्वेष करते थे। तो ये भार को उठा के वो चले, इसे कहते हैं भरत हु वॉज टॉलरेंट टू कैरी द लोड। आज पूरे विश्व भर में 2 लोगों के बीच सहन शक्ति इतनी कम हो गई है कि कुछ कोई बोले तो दूसरा व्यक्ति संबंध तोड़ देता है, परिवार टूटते चले जा रहे हैं और एक बहुत बड़ी समस्या उठ खड़ी हुई है। अमेरिका के एक कॉलेज कैंपस में मैं लेक्चर दे रहा था।
एक अमेरिकन स्टूडेंट मेरे पास आकर हिंदी बोलने लगा। मैंने उससे पूछा, तुम तो दिखने में अमेरिकन लगते हो, हिंदी बोलते हो, आर यू इंडियन और अमेरिकन? वो कहता है मैं अमेरिकन। फिर मैंने कहा हिंदी कैसे बोलते हो? कहता है मैं करोड़पति बाप का बेटा, कैलिफोर्निया में जन्म लिया। जब मैं 17 वर्ष का हुआ मैंने अपने पिताजी को कहा, पिताजी आपने मुझे जीवन में सब कुछ दिया, टेनिस कोर्ट, गोल्फ कोर्स, बड़े बड़े घर, लेकिन आपने पारिवारिक सुख का अनुभव नहीं दिया, बिकॉज व्हेन आई वाज 2 years old यू वर डिवोर्स्ड। आज लग्जमबर्ग जैसे कंट्री में 88% डिवोर्स रेट है, स्पेन में 65% डिवोर्स रेट है, फ्रांस में 55% डिवोर्स रेट है, रशिया में 51% डिवोर्स रेट है, अमेरिका में 46% डिवोर्स रेट है। द ग्लोबल डिवोर्स रेट इज 44%। लेकिन फिर भी पूरे विश्व में सबसे कम डिवोर्स रेट इंडिया, भारत में है, ओनली 1%। तो उस समय उनके पिताजी ने कहा, बेटा अगर परिवार क्या है अनुभव करना है तो भारत चले जाओ। फ्लाइट लेके भारत में आ गए, वाराणसी में गए और वहां पर पेइंग गेस्ट अवेलेबल देखा तो उस घर में जाके बोलते हैं मुझे पेइंग गेस्ट बना लो 2 साल के लिए, केवल पारिवारिक संबंधों में स्नेहिलता, स्नेह और आदान प्रदान कैसा होता है ये अनुभव करना चाहता हूं। अगर 2 साल के लिए मुझे केवल पारिवारिक अनुभव करने के लिए पेइंग गेस्ट बना लो 2 साल के लिए केवल, तो मैं हर महीने 1 लाख रुपीस रेंटल दूंगा। वो परिवार बोलता है 2 साल क्यों, जिंदगी भर रहो। और कहते हैं आपके दूसरे भी अगर मित्र होंगे जिनको परिवार अनुभव करना है, उनको भी अपन बुला लेते हैं। तो गोल्डमैन सैक्स ने रिपोर्ट लिखा कि 2015 और 2025 के बीच इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए $1.4 ट्रिलियन की आवश्यकता होगी। Out of that, $800 billion would come from family savings. Family savings will only happen when there is family feeling. And therefore, one of the biggest contributor of economy in the country is the housewife. We should not forget that. तो इसलिए जब तक हम सहिष्णुता, सहनशीलता नहीं अपनाएंगे, ये परिवार जो है परिवार के स्वरूप में नहीं रहेगा। जिस तरह असहिष्णुता, intolerance, impatience, inability to accept diversity is growing, in another 40 to 50 years the word family will become part of history book. तो इसलिए भरत महाराज अर्थात भार वहन करने की क्षमता रखने वाले, one who could tolerate a lot of accusations, misunderstandings, and still continue on with his duties. So Ram represents integrity, Lakshman represents service attitude, Bharat represents tolerance, and Shatrughna represents humility, namrata. शत्रुघ्न नित्य शत्रुघ्न नीत प्रीति पुरस्कृत, क्योंकि वो भरत महाराज की सेवा में थे। सभी लोग भरत महाराज का विरोध कर रहे थे, लेकिन शत्रुघ्न इतने नम्र थे, उन्होंने अपने अहंकार को दमन किया था, इसलिए वो सेवा में लग सके। इसलिए नम्रता का अर्थ क्या होता है? नम्रता का अर्थ होता है कि कई परिस्थितियां ऐसी होंगी जो हमारी अपेक्षा के विपरीत होंगी, और उन परिस्थितियों के वशीभूत हम अपने आप को निस्सहाय अनुभव करेंगे। लेकिन चाहे कितना भी आप निस्सहाय हो जाओ, कभी निराश मत होना। यू मे बिकम हेल्पलेस, नेवर बिकम होपलेस, एंड दैट्स द मीनिंग ऑफ आशाएं। No power can control us from becoming helpless, but we have the full power within us not to become hopeless. और इसलिए शत्रुघ्न वो जो निरंतर आशाबद्ध थे। कई वर्ष पहले अमेरिका के 2 मित्रों के साथ मैं IIT खड़गपुर के प्रोग्राम के लिए जा रहा था। हमारा फ्लाइट लैंड हुआ कलकत्ता में। लैंड होने पर मालूम पड़ा उस दिन बंगाल बंद है। बंगाल बंद है तो कोई गाड़ियां नहीं चलेंगी, तो हमको लगा कि कैसे जाएंगे, प्रोग्राम शायद कैंसिल हुआ होगा। बाहर आए तो गार्लैंड्स के साथ वेलकम किया गया, क्योंकि 3 घंटे का ड्राइव है कलकत्ता एयरपोर्ट टू खड़गपुर। तो मैंने कहा ऑर्गेनाइजर्स को, गार्लैंड वार्लैंड हमको दे दिया, मैं और मेरे 2 अमेरिकन मित्र। तो मैंने पूछा ऑर्गेनाइजर्स को, तो प्रोग्राम इज कैंसल्ड क्योंकि आज बंगाल बंद है? बोले नहीं, प्रोग्राम चालू है। मैंने कहा गाड़ी कैसे चलेगी? बोले हम एम्बुलेंस में लेने आए हैं आपको। एम्बुलेंस में बैठने लगे तो मेरे 2 अमेरिकी मित्र पूछा हम एम्बुलेंस में क्यों घुस रहे हैं?
मैंने कहा देखिए समझाना बहुत कठिन है, क्योंकि बंद क्या है वो पहले समझाना पड़ेगा मुझे। बीच में हो सकता है पत्थर उत्तर पड़े, लेकिन सही गाड़ी में बैठे एम्बुलेंस, चिंता मत करो। बीच में किसी ने रोका, मैं आगे बैठा था, बोले पीछे कौन है देखना चाहते हैं। पीछे जाके झांक के देखा अंदर कौन है। वो लोगों ने अंदर मेरे 2 अमेरिकी मित्र, गले में पहले हार था, ब्रेकफास्ट खा के आराम से सोए हुए थे। वो लोग अंदर देख के बोलते इनकी आत्मा को शांति मिले, और 3 घंटे के अंदर हम लोग पहुंच गए। तो उस समय जब लीमैन ब्रदर्स का घोटाला हुआ, पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी डाउन हुआ, तो एक बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर ने पेपर लिखा कि वर्ल्ड इकोनॉमी डाउन हो रहा है, इंडियन इकोनॉमी बढ़ रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ जुगाड़, अ काइंड ऑफ रेजिलियंस, कि भाई चाहे कितनी भी परिस्थिति विपरीत क्यों ना हो, हम नम्र रहें, प्रतीक्षा करें। बिकॉज द वर्ड ह्यूमिलिटी कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड ह्यूमस, विच मीन्स सॉइल। The soil must be fertile, supple, flexible, and allow the seeds of various ideas to germinate. तो इसलिए हमें चाहिए कि हम हमेशा लचीले रहें, नम्र रहें। शत्रुघ्न represents this। तो आप सभी के सामने मुझे आकर कुछ शब्द प्रस्तुत करने का अवसर दिया। मैं रोटरी नासिक का बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने ये अवसर दिया कि आगामी जनवरी 22 को श्री रामचंद्र के अयोध्या में नवीन मंदिर की स्थापना के उपलक्ष्य पर नासिक धाम में, जहां राम जी ने अपनी लीला की, रामचंद्र जी इंटीग्रिटी, लक्ष्मण सर्विस एटीट्यूड, भरत महाराज टॉलरेंस एंड शत्रुघ्न ह्यूमिलिटी, ये 4 गुण, इंटीग्रिटी, सर्विस एटीट्यूड, टॉलरेंस एंड ह्यूमिलिटी, these 4 qualities are absolutely essential for us to maintain long-term relationships, and only if we are able to maintain long-term relationships we can have proper mental health and happiness. And I think this is the need of the hour for all of us here in India. Thank you all very much. Hare Krishna. बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। वाकई में आपने हमें कैद कर रखा था यहाँ पर आपके प्रभुवाणी से।